When I see a CA who's earning 25 lakh rupees per annum after 10 years of work ex, no longer do I think that he is loyal, he's committed to his employer, but I think that he's a bechara. He must be struggling with his EMIs, still thinking whether to take a Uber or a local train, etc. etc. Loyalty won't pay your bills. Namaste everyone, and today I'm going to talk about something that is destroying careers. In India specifically, it's not recession, it's not AI, it is something even more worse, which is company loyalty in spite of stagnation. Yes, you know what I'm talking about. That uncle mentality which says stick to this company for 10 years, you'll be a dedicated employee. Meanwhile, your EMIs are increasing, petrol bills are just touching the sky, and your salary, well, that's stuck in yesteryears, growing at 8% per annum. This is the great Indian loyalty scam. And let's deep dive. Let's talk about Rohit, a chartered accountant who joined a mid-sized CA firm after articleship at 6 lakhs per annum starting. Family was so proud, हमारा बेटा CA बन गया. But unfortunately, the CA did not have that risk-taking appetite. 5 years later, he's been designated as a senior manager. But he makes only 9 lakhs per annum, 8% per annum CAGR. His rent has doubled, groceries have tripled, he's taking auto to office while calculating every expense. He wants to get married, but in today's real world, his earnings are not enough to entice the bride's family's interest. And his batchmate Neha, she switched firms 3 times in these last 5 years. In year 2, from 6 lakhs to 8 lakhs. Year 4, jumped to 12 lakhs per annum at a big 4. And in year 6, she's in a corporate role at 18 lakhs per annum. Compare this with Rohit, who is still struggling with 9 because he's stuck to the same company at 8% per annum CAGR. Same CA degree, same brain, but Neha has just booked another flat while Rohit is collecting years of service experience. Shabashi awards. This is the family drama in India. Our families, बेटा कंपनी में ना लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है. जॉब चेंज करने से रेपुटेशन खराब हो जाता है. एचआर आपके सीवी को देखेगा और बोलेगा टू फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस. अंकल, रेपुटेशन से घर नहीं बनते हैं. आजकल एक बेसिक फ्लैट 3-4 करोड़ रुपए का आने लग गया. सो लोग यही बोलेंगे ना कि कंसिस्टेंट नहीं है, लॉयल नहीं है. बोलने दीजिए उसको. दे विल ऑल्सो वन डे से देखो ये लड़का कितना सक्सेसफुल है जब आप एक गाड़ी चलाएंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट लोकल ट्रेन. यू नो व्हाट्स फनी? द सेम पेरेंट्स हु टेल अस डोंट चेंज जॉब्स विल प्राउडली टेल देयर पेरेंट्स, देयर नेबर्स, दैट देखो नेहा का सैलरी 18 लाख रुपए साल का है. वेदर इट इज थ्रू लॉयल्टी, वेरी गुड. अगर वो कंपनी मेरिटोक्रेटिक है, नथिंग लाइक इट, ग्रो वेरी फास्ट. बट अगर नहीं है तो इंस्टेड ऑफ स्टेगनेटिंग, मेक दिस स्मार्ट करियर मूव्स. ये कॉर्पोरेट माइंड गेम्स कैसे वर्क करते हैं? दीज कंपनीज हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन. एनुअल अप्रेजल्स में टिपिकली क्या होता है? देयर वाज एन एनुअल अप्रेजल वेयर वी वर सेंट टू अ ट्रेनिंग. द प्रेमाइस वाज कि अरे लंच वंच करेंगे, थोड़ा ट्रेनिंग में निकलेंगे, दिमाग शांत हो जाएगा. जब तक वापस आएंगे दे विल बी बैक टू नॉर्मल एंड वर्क. समटाइम्स मैनेजर से तुम्हारा परफॉर्मेंस ना बहुत अच्छा है अनुराग, बट कंपनी का ना इस साल बजट टाइट है, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हाइक मिलेगा. एंड वो नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता. और वो फैमिली ट्रैप. वी आर अ कंपनी, not just a company, we are a family.
इन रियल फैमिली जब बेटे को जरूरत होती है तो बाप अपनी ज्वेलरी बेच देता है, बट यहाँ बाप अपनी हाइट पे फोकस्ड है, आपको पिज्जा पकड़ा देगा वीकेंड पे काम करवा के. दैट्स द रियलिटी, राइट? एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड सिस्टम वेरी इंटरेस्टिंग. 5 साल के बाद एक घड़ी, 10 साल के बाद एक सर्टिफिकेट, 15 साल के बाद एक वॉच. वाओ, ऐसा रिटायरमेंट जिसमें जो पेंशन है वो आपका डिसेंट हेल्थ केयर को भी नहीं दिला सकता है. और आपके जॉब हॉपिंग फ्रेंड्स, उनके पास 1 अपार्टमेंट, 2 अपार्टमेंट्स. आप गिफ्ट्स कलेक्ट करिए और अपनी पूरी अलमारी को सजा दीजिए ये 150 रुपए के मोमेंटोस के साथ. द स्विचिंग स्टिग्मा. इंडिया में यार ये लड़का ना 2-2 साल में जॉब चेंज करता है. कमिटमेंट का इशू है. कमिटमेंट का इशू ये है कि हाँ, मैं अपनी सैलरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. आई एम नॉट कमिटेड टू अंडर परफॉर्मेंस. यू नो व्हाट, इन अमेरिका व्हाट डू दे से? This person has been with the same company for more than 3-4 years. His CAGR has been 8%. Something wrong. क्या इसको कोई और ले नहीं रहा क्या? Are they not capable enough that they are going to be hired by someone else? इंडिया में भी सेलिब्रेट. मेरे जॉब में बोलते, you know, I am with this company for 25 years. And I used to say, yeah, that's why you're stuck here. So we celebrate something which is an achievement, so to say, but it is a financial disaster. Boss, the wake up call is, see, I'm not here to say कि बस हर 6 महीने में जॉब चेंज करो. Just because I run a job portal does not mean that all of you should flood our portal with your CVs. But understand, your company HR will hire someone from outside at a very good hike. They have that budget. But to give you an increment, they don't have that budget because there is recession and the company is going through tough times. You know what, आपको 8% इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी सांस भी चलती रहे. आप ऑफिस भी आते हैं बट आप चू भी ना करें. उनको पता आप नहीं छोड़ के जाओगे. उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है इस चीज को कि 8% से ये बंदा जिंदा रहेगा, आपकी EMI चलती रहेगी, आपकी फैमिली चलती रहेगी, एंड लोग क्या कहेंगे वाले कॉन्सेप्ट से चलता रहेगा. एंड पता है सबसे बड़ा जोक, माइक्रोसॉफ्ट जो एक ड्रीम कंपनी होती है सबकी, वहां पे दे फायर्ड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज. एंड सबसे पहले किसको फायर किया गया? द मोस्ट लॉयल, द मोस्ट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज, बिकॉज दे वर परसीव्ड टू बी नॉन प्रोडक्टिव एज AI प्रोग्रेस्ड. जो 10 साल, 15 साल, 20 साल काम कर रहे थे, अपना पूरा करियर सो टू से उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया. दे मिस्ड फैमिली डिनर्स, वर्क वीकेंड्स, शो डेडिकेशन, एंड कंपनी ने दिया लीजिए पिंक स्लिप एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस. वो भी ऑटो जनरेटेड, सिस्टम जनरेटेड ईमेल. न्यूअर एम्प्लॉइज को कहा जाता है भाई सस्ता आएगा, बेटर स्किल्स लेके आएगा. एक्यूमेन है, ये तो डेडवुड है. एंड लॉट ऑफ पीपल सर्वाइव द लेयर्स बिकॉज दे वर टू एक्सपेंसिव टू रिप्लेस. सो लेट मी टेल यू, जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगेगा यूरोप हॉलीडे, आप ये नहीं बोल सकते उसको कि मैं उसी कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए चल मंदारमनी चल. पापा ये लॉयल्टी उतनी अच्छी नहीं है, हमें यूरोप ही जाना है. जब किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिएगा और आप EMI हॉस्पिटल बिल के अंदर वो ब्रेक इवन चार्ट्स बनाएंगे, तो लॉयल्टी इज नॉट गोइंग टू पे. जब आप 45 की एज में भी एक रेंटेड हाउस में रहेंगे, दैट यू डोंट हैव इनफ फॉर योर डाउन पेमेंट, विल द कंपनी लॉयल्टी गिव यू अ होम? नो. एंड व्हेन यू आर 50, AI comes, you are fired after 20 years of service. Will your loyalty help you find a job at the same level? Of course not. मेरे पास कितने सारे CVs आते हैं 20-25 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में, perceived to be deadwood, fired, and now no one is willing to take. तो रियलिटी चेक यही है बेटा कि 3 कंपनी चेंज करने से 5 साल में सैलरी 3 गुना हो जाती है. 60%, 45%, 40%, 5 साल में 300% ग्रोथ. और अगर आप लॉयल होते हो 8%, 10% कैगर से 50 से 60% ग्रोथ. सिंपल मैथ्स है. तो कंपनी भी आपको बेटर ट्रीट करती है जब आप जॉब हॉपर होते हैं ना वे, बिकॉज उनको पता है आपके पास ऑप्शन है, आपका CV अब मार्केट में फ्लोटेड है. जो ये है ना, मैंने तो CV नहीं अपडेट किया, मैं कहते यहीं रहना है. सो व्हेन यू आर लॉयल टू दैट वन कंपनी, आपका पावर खत्म हो जाता है. व्हेन यू हैव ऑप्शंस,
यू बिकम वैल्यूएबल। आप देखिए ना, आपकी पत्नी भी आपको तभी रिस्पेक्ट करेगी जब 4 लड़कियां और आपको पार्टी में देख रही हो। अगर आप इतने भुंडे दिखते हैं कि आपकी पत्नी छोड़ के कोई आपको देखेंगे ना, तो वो भी आपको एकदम पावर खत्म कर देती है। तो रियलिटी है लाइफ में, यू नीड टू हैव ऑप्शंस। तो सक्सेस फॉर्मूला यही है, हर 2 साल में अपना मार्केट वैल्यू टेस्ट करिए। हैप्पी है कोई बात नहीं, बट इंटरव्यू देने जरूर जाइए, ठीक है। डोंट मेक इमोशनल डिसीजंस अबाउट योर करियर। तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आजकल आपको रिप्लेस करते हैं। सिस्टम जनरेटेड मेल आएगा, आपका सिस्टम आईडी ब्लॉक हो जाएगा एंड चले जाइए मार्केट में सीवी बना के। एंड अगर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे अपने सिस्टम को, अपने स्किल्स को, तो यू आर गोइंग टू बिकम ऑब्सोलीट। सेम प्रोजेक्ट, सेम रोल, सेम, अरे 1000 टाइप का हरामी बॉस के साथ आपको काम करने का स्किल तो होना चाहिए। नहीं होगा तो एक अच्छा बॉस के साथ आप चिपक के पूरा जिंदगी डर डर के जिएंगे कि नहीं कहीं और जाऊंगा, अच्छा बॉस नहीं हुआ तो क्या होगा। नो। एंड रिलेटिव्स के बारे में प्लीज मत ही केयर करिए। तो अगर वो जज कर रहे हैं तो मुझे जज करिए, अपने बेटे को जज करिए, मुझे मत जज करिए। एंड जॉब सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम बीइंग in that one company, it comes from having that skill which is in demand. For example, financial modeling or valuation or due diligence या maybe some product management skills जो in demand है. It is not depend on your being in that company for 25 years. It depends on your having that skill set. That's what is the skill in demand in multiple companies. So the final truth is, I know switching jobs is scary. Maybe next boss can be a वर्स पर्सन देन माई करेंट बॉस। तो हमें कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज कर ले बेटा, एडजस्ट कर ले, पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट जॉब में। होगा तो होगा, अच्छा है ना। एज आई टोल्ड यू, जितना बदमाश बॉस हो उतना अच्छा है, आपका वर्क एक्स बढ़ रहा है। सो अगर अपने करियर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करें तो आप एक्चुअली अपने बच्चों के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, अपने फैमिली की हैप्पीनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो 30-50% का एक साथ जो किकर मिलता है जॉब चेंज करने से, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स बेटर एजुकेशन, बेटर मेडिकल केयर, अ बेटर हाउस, योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो जॉब चेंज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पहले भी ये कंपनी चल रही थी, आपके बाद भी ये कंपनी चल रही है। करियर आपका है, जिंदगी आपकी है। यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस, YOLO, मेक इट काउंट। एंड अगर कोई बोले कि जॉब हॉपिंग इज बैड फॉर योर करियर, उनको बोल दीजिए ये रहा मेरा सैलरी स्लिप, देख लो। और कई बार तो जो एचआर आपको जज कर रहा है कि यू चेंज जॉब्स ऑफन, वो एचआर खुद 4 जॉब चेंज कर यहाँ पे पहुंचा है। तो अब तो बोलेगा कि आईने में एक बार सामने खड़ा हो जाइए और खुद को देख लीजिए, फिर मेरे बारे में जजमेंट पास करेगा। एंड ऑफ द डिस्ट्रक्शन। सो इफ दिस वीडियो हैज ओपनड योर आईज अबाउट लॉयल्टी, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस who've been building career in that same company for 8 years. देखिए सेम कंपनी इज गुड अगर वो करियर आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। अगर वो आपको डेडवुड समझता है, देन दैट्स नॉट द कंपनी। लॉयल बनिए ना, रिलेशनशिप में लॉयल बनिए, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। कंपनी के साथ लॉयल्टी करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फर्दर dimension of this corporate reality